Hello, good morning everyone. So today also we are going to discuss few more contraceptive in which we will discuss implants, injection, and along with that we will discuss few terms, that is MTP and STDs in detail. So let me start with the first term, that is the next contraceptive method, implants. These implants are also known as knot plant, and in this method we simply insert 6 micro injection inside the skin or beneath the skin. So in this method 6 small size, or we can say micro injections, 6 micro injections are inserted beneath the skin, having, and what these injections are having steroid, which is called progesterone, female hormone. Okay, these micro injections, they are long lasting and remain effective for around 5 years. As in this method the injection are inserted beneath the skin, so this is also known as, this method is also known as subcutaneous. Cutaneous is the term we are using for skin. So subcutaneous method. Now in this method or in this injection, as we know, here the composition is what? Composition wise it is having the same composition similar to oral pills, that is progesterone. Okay, and it show the same principle as shown by the oral pills. तो principle of working भी क्या है यहाँ पर? Same. And what is that? It prevent either ovulation or it makes the cervical mucus thick, which prevent entry of sperm. Okay. Now after this the next method is your injections. So as the name suggests, in this hormonal injections are, or hormonal, or we can say hormone derivative injection, hormone derivative injections are taken in every 3 months. And these injections have composition of same female hormone, that is progesterone, and this hormone, it prevents the ovulation, same as that in case of your knot plant. Okay. Now what is the drawback of both the method? So इन दोनों ही मेथड में आपका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा हार्मोन का क्या कर रहे हैं,
एक्स्ट्रा हार्मोन को इनोकुलेट करा रहे बॉडी के अंदर. सो इन दिस केस समटाइम हैवी menstrual ब्लीडिंग में अकर. कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपका बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, हैवी होती है, या फिर हो सकता है पूरी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप भी हो सकती है फॉर फ्यू मंथ. ओके, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड. अदरवाइज ये दोनों ही मैथड आपके लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा समय तक काम करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स है, तो उतने ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं नॉरप्लांट और आपके इंजेक्शंस के. एक और यहाँ पर आपका टर्म यूज किया जाता है इमरजेंसी पिल. इमरजेंसी पिल. These emergency pill are also known as morning after pill. Morning after pill doesn't mean that you have to take this pill after morning. These are simply pills having the same hormonal composition. So heavy composition hormonal pills हैं, hormonal pill किट होती है जो कि आपका विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स में ली जाती है. सो इट इज कंज्यूम्ड और टेकन विदिन 74 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स. जनरली इमरजेंसी पिल जो है आपका उन कंडीशंस में दी जाती है जैसे आपका क्रिमिनल केस होते हैं, रेप विक्टिम वगैरह. सो जनरली वहां पर प्रिस्क्राइब ये की जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म विल डिस्कस विल बी योर MTP. MTP stands for medical termination of pregnancy or we can simply say abortion. ठीक है, सो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है ये सेफ होता है, यानी अबॉर्शन सेफ होता है मदर के लिए अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीनों में. बट ये लीगली आपका 28th वीक तक आप करवा सकते हैं अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करे कि जो होने वाला बच्चा है वहां कोई डिसऑर्डर है या फिर बच्चे की वजह से मदर हेल्थ जो है या मदर की डेथ हो सकती है, तो उस केस में लीगली आपका 28th वीक तक ये क्या होता है, लीगल होता है. सो लेट वी स्टार्ट विद द टर्म MTP. इट स्टैंड फॉर मेडिकल termination of pregnancy. It is safe up to first trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हम 12 वीक ले सकते हैं, 1 महीने में 4 वीक है, तो आपके 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका ये सेफ होता है, मीन्स विच इज अप्रॉक्स 12 वीक्स. ओके, एंड लीगल अप टू 28 वीक्स इफ एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स. ये आपका MTP जो है ये अलाउ कब किया जाता है, सो यहाँ पर आपका अलाउ किया जाता है अबॉर्शन और MTP इज लीगल if child or developing fetus have some
जेनेटिक डिसऑर्डर हो उस टाइम पर आप टर्मिनेट करा सकते हैं, या फिर आपका इफ मदर फेसेस सम हेल्थ इश्यू ड्यू टू फीटस डिलीवरी, या फिर फीटस डिलीवरी की वजह से मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, मदर की डेथ हो सकती है, उस केस में आपका यहाँ पर अलाउ होता है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। जर्नली आपका जो एमटीपी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की है। कौन सी? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड spontaneous, and the second one is therapeutic. In case of spontaneous, generally 1/3 of pregnancy it get aborted due to spontaneous abortion, and in case the female is generally not know this thing that she is pregnant, तो ज्यादातर जो 1/3 प्रेगनेंसी होती हैं वो स्पॉन्टेनियस ही अबॉर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल को नॉलेज ही नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट है, और सिंपली जो उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो है उस मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ही प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो जाती है, तो उन्हें जर्नल ही लगता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पर आ रही है। तो अर्ली स्टेजेस पर जो pregnancy which are unknown to फीमेल को जिनके बारे में पता नहीं होता, और डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से नॉर्मली फीटस कम आउट विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो, सो वो आपका होता है स्पॉन्टेनियस। थेरेपेटिक के अंदर जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है वो डेवलप हो चुका होता है, एंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका होता है मदर बॉडी और फीटस में। जैसे हम अर्ली स्टेजेस पर कह रहे हैं, तो अर्ली स्टेजेस में जैसे आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ की प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, तो उस टाइम पर उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मदर और फीटस बॉडी में होता नहीं है। सो इन थेरेपेटिक ये आपकी लेटर स्टेजेस में होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका हैविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फीटस हैविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मदर बॉडी के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। सो ये आपका एडवाइस की जाती है, एडवाइस बाय डॉक्टर्स, ठीक है। जहां पर आपका क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं दी गई, स्पॉन्टेनियस अचानक उन्हें पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, बट यहाँ पर आपका क्या होता है, यूज ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल जो 7 to 9 वीक की प्रेगनेंसी है उन्हें टर्मिनेट करने के लिए एक जर्नल मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिफप्रिस्टोन। तो यहाँ पर एक जर्नल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, मिफप्रिस्टोन। सो ये आपका मेडिसिन ले सकती हैं फीमेल अगर उन्हें टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपी? एमटीपी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्या फायदा है? मेडिकल टर्मिनेशन जो है ये हम कर सकते हैं अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, यानी कि आपका कॉइटस या मेटिंग के टाइम पर कपल जो है
वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज नहीं किया, या फिर कई केसेस में उन्होंने प्रोटेक्टेड सेक्स किया लेकिन उसके बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वहां पर वो चाहते ही नहीं है चाइल्ड अभी लाइफ में, तो वहां पर आपका ये यूज की जा सकती है. सो सिग्निफिकेंस इज to get rid of unwanted pregnancies due to, ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज क्यों हो रही है? ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ठीक है, या फिर आपका रेप केसेस, वहां पर आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी से फीमेल खुद को प्रिवेंट कर सकती हैं. और इसके अलावा सिग्निफिकेंस और क्या फायदे हैं? सो टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन increasing एक्सपोनेंशियल रेट पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए भी एमटीपी असेंशियल है. ठीक है, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप रोक पाए. नाउ आफ्टर दिस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एमटीपी? एमटीपी का ड्रॉबैक मतलब ये यूज कर सकते थे, बट जैसे हम कह रहे हैं ना कि इलीगल कर दिया गया है, तो यहाँ पर इलीगल करने का रीजन क्या रहा होगा? सो व्हाट इज द ड्रॉबैक हियर? The first drawback is because of this medical termination of pregnancy, जो फीमेल फीटिसाइड है उनका किलिंग रेट बहुत ज्यादा क्या हो गया? एनहांस. मीन्स लोग जो है वो वेरीफाई या चेक करा लेते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल, और फिर मिस यूज किया जाता है इसका टू अबॉर्ट द फीमेल फीटस. ओके, सो यूज्ड टू अबॉर्ट फीमेल फीटस इलीगली. ठीक है, इलीगली क्या किया जा रहा है? फीमेल फीटस को अबॉर्ट किया जा रहा है. दूसरा आपका क्या है? जर्नली जो एमटीपीज करवाते हैं, सो क्योंकि इलीगल है तो अनप्रोफेशनल क्वैक जैसे दाई वगैरह हैं वो कर देते हैं, जिनको मेडिकल फील्ड की नॉलेज भी नहीं है, और वो आपका मदर के लिए फैटल हो सकती है, यानी कि डेथ कॉज कर सकती है. So it is performed by unprofessional quacks having no knowledge of medical field, which may be fatal for mother. ठीक है, इसके अलावा भी कई ड्रॉबैक है, जैसे कि इमोशनल एथिकल इश्यूज जुड़े हुए होते हैं कि बोलते हैं ना भगवान की देन है बच्चा और आप उसे मार नहीं सकते. सो यहाँ पर वो भी ड्रॉबैक है दैट इमोशनल एथिकल social connection or we can say issues related to एमटीपी. ठीक है, एमटीपी से रिलेटेड आपकी इमोशनल एथिकल इश्यूज है कि बच्चों की जान आपको नहीं लेनी चाहिए. तो ये आपकी क्या है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है. After this, our next topic is STD. So this is all for today. In the next part of video, we will discuss this next topic, that is STD in detail. Thank you.